Hello everyone, we welcome you to this devotional in the name of इस Jesus. डिवोशनल में आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। If you are part of these devotionals, अगर आप इस डिवोशनल के भाग हैं you know that we are on a series called Let Us Pray. तो आप जानते हैं कि हम ये श्रृंखला में हैं जिसका नाम आओ हम प्रार्थना करें In है। this series, our model is none other than Jesus himself. और इन श्रृंखलाओं में हम अपने आदर्श को देख रहे हैं जिनका नाम यीशु मसीह He है। began everything with prayer and ended everything with prayer. उन्होंने सारी बातों की शुरुआत प्रार्थना से की और प्रार्थना से ही अंत In किया। spite of that, there were certain situations and circumstances wherein he intensified the prayers. वो प्रार्थनाशील हमेशा बने रहे, लेकिन चंद संदर्भों में उन्होंने और ज्यादा प्रार्थना की। Through these devotionals, और इन डिवोशनल्स के जरिए we are making an effort to expose those truths so that we may be just like Jesus और Christ. हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे संदर्भों को हम देखें ताकि हम हूबहू यीशु की तरह हो। Hallelujah. Hallelujah. And now today we are going to look at the final point. आज जो है हम आखिर के पॉइंट को देखने वाले हैं। The final point is Jesus prayed just before the most critical point of his life. और यीशु मसीह ने तब भी प्रार्थना की जब वो अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान पर थे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, there are situations, there are critical points that we face in our life. और ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में भी होते हैं जहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ हम सामना करते हैं। Those critical points either make us or break us. और वो महत्वपूर्ण जो हम का सामना हम कर रहे होते हैं वो संदर्भ जो है हमको बना सकते हैं या फिर हमको तोड़ सकती हैं। Jesus was elevated to the place and the position where God wanted him to because of what he did on that particular point. और यीशु मसीह जो है वो ऊंचे पर आज इसीलिए है क्योंकि उस दौरान वो गंभीर स्थिति के दौरान उन्होंने जो किया उसकी वजह से आज वो ऊंचे पर है। Hallelujah. Hallelujah. Today, this morning, I want us to look at Matthew chapter 26 verse 36 to 46. आज हम चाहते हैं कि मत्ती के 26वें अध्याय में हम देखेंगे 36वें वाक्य से हम नीचे I know देखेंगे। for a devotion it's a very long reading. डिवोशनल के लिए ये लंबा पठन हो सकता है, I want us to go one verse at a time. लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक वाक्य हम ले। There are empty number of mysteries that are hidden there. बहुत सारी रहस्यमय बातें वहाँ पे छुपी हुई I हैं। want us to understand and progress together. हम चाहते हैं कि हम समझ ले और साथ में हम आगे बढ़े। Before I read that place, पढ़ने से पहले I want to bring a little background to this place. थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको दे देता हूँ। Just 2 days before, 2 दिन पहले Jesus was anointed with a fragrant oil by Mary at Bethany. बेथनी में यीशु मसीह को मरियम ने अभिषेक किया था। And it was a symbolic thing that she did. और ये जो है कुछ बात को दर्शा दिया, उनकी मृत्यु को दर्शाते हुए उसने किया। You know, when he died on the cross of Calvary, जब कलवरी क्रूस पर यीशु मरे, there was no time to embalm him. समय नहीं था कि उनको जो है सुगंध There was द्रव्य no time for her, anybody to kind of pour the precious oil. सुगंध द्रव्य तेल जो है उन पर उंडेला जाए, किसी के पास में कोई समय नहीं था। So she did it symbolically without knowing what she's doing. She did it symbolically. तो बिना जाने पहचाने जो है कुछ उनकी मृत्यु को दर्शाते हुए मरियम ने ये किया। And then after that, Jesus comes into Jerusalem और फिर उसके बाद यीशु मसीह यरूशलेम आते हैं and he takes his disciples to the upper room of a certain man. और अपने शिष्यों को जो है किसी एक जन के घर के ऊपरी कोठरी में ले जाते हैं And then institutes the Lord's Supper. और वहां पे प्रभु मेज को स्थापित करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you, when he is instituting the Lord's Supper, और जब ये प्रभु मेज की स्थापना यीशु मसीह ने की, he tells the rest of the disciples who's going to betray him. और बाकी के शिष्यों से वो कहते हैं कि कौन उनको धोखा देने वाला He है। told them because he knew what would happen to him in the very next step. उन्होंने उनको बताया, इसलिए बताया क्योंकि वो जानते थे कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला The है। moment he said that, जब यीशु ने ऐसा कहा the betrayer stood up and he just left the place. तो वो धोखेबाज जो है खड़ा हो गया और वहां से निकल गया। Jesus had a choice of just going and hiding himself from the rest of the world. और यीशु मसीह के पास चुनाव था कि वो जाकर जो है दुनिया के लोगों से छिप सकते थे। He did not do that. उन्होंने लेकिन ऐसा नहीं किया। Instead, he set himself up before the rest of the world
so that he may be arrested. लेकिन इसके बजाय जो है वो तैयार थे कि उनको गिरफ्तार किया जाए। What did he do? उन्होंने क्या किया? He took the 11 disciples, 12 चेलों को वो ले गए। and then I want us to look at verse 36 now. और फिर हम चाहते हैं मत्ती के 26वें अध्याय के 36वें वाक्य से हम I want us देखें। to go very slow with me. धीरे से हम जाएंगे। I'm going to read it for you from the New King James Version. न्यू किंग जेम्स वर्जन से पढ़ा जा रहा है अंग्रेजी में। Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to his disciples, "Sit here while I go over and pray." तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। Hallelujah. हालेलुया। Of the 12 disciples, only 11 are left with him. और 12 चेलों में से 11 उनके पास हैं। Of the 11 that he's leaving 8 at the gate of Gethsemane. और 11 में से 8 को जो है गेत्सेमनी के द्वार पर छोड़ रहे हैं। And he commands them and tells them, "Sit here." और उनको कहते हैं कि यहाँ पे ही बैठे रहो। Hallelujah. Hallelujah. And he takes the rest of the 3 people. और बाकी के 3 लोगों को आगे चलकर ले जाते And we हैं। can see in 37 what happens. और वहां पे आगे देख सकते हैं And आप। it says, "And he took with them Peter and 2 sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed." Verse 38, then he said to them, "My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me." और वह पतरस और जेबेदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, "मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो." He left the 8 at the gate of Gethsemane, उन्होंने 8 चेलों को गेत्सेमनी के द्वार पर छोड़ा। took 3 who were very, very close to him further down into Gethsemane, जो 3 उनके बहुत नजदीकी के थे उनको आगे गेत्सेमनी के अंदर ले गए and said, "Stay here और उनसे कहा कि यहाँ पे बने रहो and watch over me." और मेरे साथ में जागते रहो। Rather, watch with me. मेरे साथ जागते रहो। Somebody sit and somebody stay. और कुछ चेलों से कहा कि बैठे रहो और आगे कुछ चेलों से कहा कि बने रहो। The closer that you are to Jesus, जितने आप यीशु के निकट नजदीकी के हैं greater the responsibilities that will be expected, rather entrusted to you. और आप पर जिम्मेदारी जो है ज्यादा जिम्मेदारी डाली जाएगी। And then verse 39 says something very beautiful. 39 में कुछ लिखा हुआ है It बहुत सुंदर। says, "He went a little further and fell on his face and prayed, saying, Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, this was the critical point in the life of Jesus Christ. यीशु मसीह का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल था This was a breaking point in his entire ministry. और उनकी सेवकाई में, पूरी सेवकाई में ये ऐसा एक पॉइंट था जहां पे वे टूट सकते थे। He was not fearful of dying. मरने से वो डर नहीं रहे थे। He was not even fearful of dying on the और cross. क्रूस पर मरने से वो नहीं डर रहे थे। He was fearful of 2 things. 2 बातों को लेकर वो चिंतित थे। Number 1, he was fearful of taking the whole sin of the mankind over himself. पूरी मानव जाति के पाप को उठाना ढोना, इसको लेकर जो है वो थोड़े से व्याकुल थे। Number 2, he was fearful of being separated from the Father, not because of himself, but because of the sin that was upon his life. और वो इस बात को लेकर भी उदास थे कि वो अपने पिता से अलग होने वाले हैं, अपने वजह से नहीं, लेकिन क्योंकि दुनिया का पाप वो ढोने वाले थे। And the pain of the sins of the world was too intense. और दुनिया के पाप का जो दर्द था वो बहुत ही ज्यादा था। And the pain of being separated from Father was really, really hurtful. और ये दर्द कि पिता से मैं कैसे अलग हूँ, वो जो है बहुत ही दर्दनाक था। My brothers and my sister, that's when he makes this prayer. तब जाकर जो है ये प्रार्थना वो करते हैं। He says, "Let this cup pass by."
कि ये हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। In the same breath, he says, nevertheless, not my will, but your will be done. वही श्वास में वो कहते हैं तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। Hallelujah. He makes that important prayer महत्वपूर्ण प्रार्थना को वो करते हैं and comes back to see what's happening with his और disciples. फिर वापस आते हैं देखने के लिए कि शिष्यों के साथ क्या हो रहा Verse है। 40, then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, what? Could you not watch with me 1 hour? फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? My brothers and my sisters, Jesus ministered to these disciples for 3.5 years. और देखिए यीशु मसीह ने इन चेलों की सेवकाई 3.5 साल की He only expected them to minister to him for 1 hour. और वो केवल ये चाहते थे कि ये जो इनके चेले हैं 1 घंटे के लिए उनके साथ प्रार्थना करें। Even in that 1 hour, the day failed miserably. और उस 1 घंटे में भी ये लोग असफल हो गए। It was greatest privilege of these three to pray for Jesus and minister to Jesus Christ in those very critical point of his life. और ये 3 लोगों के लिए ये एक सौभाग्य की बात थी, इनको एक मौका था कि यीशु मसीह के बहुत ही कठिन पल में वो उनके साथ में बनकर जो है प्रार्थना करे। 41 says, 41. watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but flesh is weak. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। You know what? Jesus was really upset with them. यीशु मसीह उनसे थोड़ा नाराज थे। He could see that they could not watch with him for 1 hour also. वो देख पा रहे थे, यीशु मसीह देख पा रहे थे कि 1 घंटे के लिए भी ये लोग बने नहीं रह सकते थे उनके But let me साथ। tell you, लेकिन मैं आपसे कहूँ, Jesus did not blame them. Jesus did not misunderstand them, but understood them and knew that they were willing, but unfortunately their flesh was weak. यीशु मसीह ने उनको गलत नहीं समझा। यीशु मसीह ये समझे कि ये लोग तो इच्छा करते हैं लेकिन शरीर में ये लोग दुर्बल है। 42 says, again second time he went away and prayed, saying, oh my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done. 42 में आगे चलकर लिखा हुआ है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। When he made the first prayer, जब उन्होंने पहली प्रार्थना की, Jesus was 2 steps away from God यीशु and मसीह his will. यीशु जो है परमेश्वर और उनकी इच्छा से 2 कदम पीछे थे। Praise God. परमेश्वर के नाम की When he स्तुति हो। made that first prayer, that he took 1 step closer to God and his will. जब उन्होंने वो पहली प्रार्थना की तो वे परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा के निकट आए। And second time when he prayed, his language changed. और दूसरी बार जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो उनकी भाषा बदल गई He took even 1 more step closer. और वे अपने पिता के और नजदीक आ गए। And then further down he says in 43, and he came and found them sleeping again, for their eyes were heavy. 44 says, so he left them, went away again and prayed the 3rd time. When he prayed the 3rd time, the same prayer, my brothers, he was not 2 steps away from the will of God, but he merged himself with the will of God. तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। जब तीसरी बार यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो वो जो है परमेश्वर की इच्छा में वो मानो परमेश्वर के साथ एक बन गए थे और एक हो गए थे। Hallelujah. 45 says, then he came to his disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of the sinners. Verse 46 says, rise, let us be going. See, my betrayer is at hand. तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, dying on the cross of Calvary, कलवर क्रूस पर मरना, taking 39 stripes in front of Pilate, 39 कोड़ों को खाना पिलातुस के सामने, they were the result of the decision that he took at Gethsemane. ये परिणाम थे, परिणाम उस
उस निर्णय का जो उन्होंने गेत्सेमनी में लिया था। What happened at Golgotha is only the result of what happened at Gethsemane. और जो गोलगत्ता में हुआ वो इसी बात का परिणाम था, जो वो निर्णय का परिणाम था जो उन्होंने गेत्सेमनी में लिया था। He did not miss praying at the critical point of his life. अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में वो प्रार्थना करने से नहीं चूके। When you and I miss out on that critical praying at the critical point of our life, जब हम और आप जो है चूक जाते हैं और हमारे जीवन के बहुत ही वो महत्वपूर्ण पल में हम प्रार्थना नहीं करते हैं, we tend to miss the very purposes of God for our life. तो हम जो है परमेश्वर के उद्देश्य को मानो खो देते हैं अपने जीवन के Before लिए। I hang my boots, I want to ask you a question. अंत करने से पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, Do you think that Jesus prayed because he should pray? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह ने इसलिए प्रार्थना की क्योंकि उनको प्रार्थना करना चाहिए, Or he prayed because he wanted to pray? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की इसीलिए क्योंकि वो प्रार्थना करना चाहते थे? The answer is उत्तर ये है, he wanted to pray. वो प्रार्थना करना चाहते थे। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, those who pray know this very well. जो लोग प्रार्थनाशील है वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। If you're praying less, अगर आप कम प्रार्थना कर रहे हैं you don't feel like even making that prayer. तो आपको जो है उतना भी प्रार्थना करने का मन नहीं लगेगा। If you're praying more, अगर आप ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं praying even more will never be a problem. तो और ज्यादा प्रार्थना करना इसमें आपको कठिनाई नहीं If you होगी। want to accomplish all that you have been called for, अगर आपको सारी बातों को अपने जीवन के लिए हासिल करना है जिस कारणवश परमेश्वर ने आपको if you बुलाया want है, to accomplish the very purposes of God for which the Lord has called you out of darkness, अगर आप जो है वो सारे उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं जो उद्देश्य को परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा हुआ है और इसीलिए अंधकार से आपको प्रकाश में उन्होंने लाया है, you better be a man or a woman of prayer. तो जरूरी है कि आप प्रार्थनाशील पुरुष या स्त्री बने रहे। Better emulate our God, our Lord in praying at all situations तो and हमारे circumstances. प्रभु की नकल हम करें और सारे स्थिति परिस्थितियों में हम प्रार्थनाशील बने रहे। As you do that, जैसे हम ऐसा करते हैं your life shall not remain the same in the name of हमारा Jesus. जीवन जरूर परिवर्तित हो जाएगा मसीह यीशु के नाम You से। will be the most powerful individual on earth आप इस पृथ्वी पर सबसे सामर्थ्यशील व्यक्ति बन because you जाओगे will be the most powerful individual on और earth. क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे सामर्थ्यशील व्यक्ति आप होंगे, You will also be the most powerful, successful individual on earth. आप एक बहुत ही सफल व्यक्ति इस पृथ्वी पर होंगे। May the Lord Almighty help you in this in the name of Jesus. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको इसमें मदद करे यीशु मसीह के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।